Good morning, students. Myself Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, Nimka Thana. Today, we discuss about structure elucidation of alkaloids. In previous class, we discuss about the basic character of alkaloids. What is alkaloids? Alkaloids are nitrogen containing compounds, natural occurring compounds. They also have oxygen, chlorine, phosphorus, sulfur, etc. They are weak basics base. Now we discuss about the methods used to determine the structure of alkaloids. Firstly, we determine empirical formula or molecular formula. It is decided by qualitative and quantitative analysis. Mass spectrometry also used to determine molecular formula or molecular weight. The optical activity of compound measured by the help of polarimeter, ORD, X-ray analysis, circular dichroism, etc. Presence of oxygen atom. If oxygen atom present in the compound, different functional group may be present. First, OH group. Number of OH group also determined by acetylation of compound. Here you see the acetylation of alcohol, acetyl chloride, then ester is formed. This reaction acetic anhydride also we used for acetylation. Phenolic group if present, then when react alkaloid with NaOH, then alkaloid soluble in NaOH and pass CO2 gas precipitate observed. If the compound, then we add ferric chloride, then red, green, violet color appeared. These reactions show the presence of phenolic group in the alkaloid. If simple OH group present, then alkaloids not give above these reactions. If carboxylic group present, then simply if we add sodium carbonate or ammonia solution in alkaloid, then alkaloid soluble in sodium carbonate or ammonia. So these reactions show the presence of carboxylic group in the compound. Esterification also used to detect COH group in alkaloids. If oxo group present, then if hydroxylamine add the compound, then oxime formed. Phenylhydrazine add, then phenylhydrazone observed. If hydrazine react with oxo group, then hydrazone formed. These reactions show the presence of oxo group in the compound. Hydrolysis of the alkaloid and examination of the product led to information that the compound is an ester, lactone, amide or a betaine. For active hydrogen determination, Jerevitnov method used. For methoxyl group determination, Giesel method used. In Giesel method, when alkaloid heated with hydro Hi at 126 degrees centigrade, then methyl iodide
फॉर्म्ड, और एथेनोलिक AgNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो AgI फॉर्म होता है, और इस AgI का वेट कर लेते हैं। इसके द्वारा हम कंपाउंड में जो मिथॉक्सिल ग्रुप है उनकी प्रेजेंसी कितने प्रेजेंट है वो शो करते हैं। मिथाइलिडिन डाइऑक्साइल ग्रुप की प्रेजेंसी को चेक करने के लिए इसको हीट करते हैं HCl H2SO4 के साथ एल्केलॉइड को, देन फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन शो द प्रेजेंसी ऑफ मेथिलिन डाइऑक्साइल ग्रुप इन द एल्केलॉइड। द फंक्शनल नेचर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की नेचर चेक करने के लिए हम पहले इसका नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसका लेसानी सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और प्लस NaOH ऐड करते हैं तो ग्रीन PPT आता है। और इसके अंदर आफ्टर वी ऐड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड एंड कंसंट्रेट H2SO4, ब्लू ग्रीन कलर appeared. This reaction show the presence of nitrogen in the compound. एल्कोलाइड की जब रिएक्शन करवाते हैं मेथिल आयोडाइड और HNO2 के साथ तो रिएक्शन नहीं होती। दिस शो द 3rd डिग्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और एल्कोलाइड की जब KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो यदि इफ मेथिलेमीन फॉर्म्ड देन 1 methyl group present at nitrogen atom, और यदि इस डिस्टिलेशन पर डाइमिथाइलेमीन फॉर्म्ड होती है देन 2 methyl group present at nitrogen atom. If trimethylamine formed then 3 methyl group present at nitrogen atom. If ammonia formed it shows the presence of amino group in the compound. तो ये सारा जो ये रिएक्शंस है कि नेचर जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन है उसकी नेचर क्या है उसको शो करने के लिए कि भाई नाइट्रोजन पर कितने मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है कंपाउंड में, उसके लिए सिंपली नाइट्रोजन टेस्ट कर लेते हैं और आगे इसका KOH के साथ डिस्टिलेशन करते हैं तो नाइट्रोजन एटम पर कितने मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है उनका पता लग जाता है। फिर देखते हैं द प्रेजेंसी ऑफ N मेथिल ग्रुप and their number of may be determined by means of the Hurjig-Meyer methods. इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो जैसे HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंडर प्रेशर तो मेथिल आयोडाइड फॉर्म होता है, तो जो नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल शो द प्रेजेंसी ऑफ एन एमाइड लैक्टम और बीटेन। तो यहाँ से हम इसकी ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका कार्बन स्केलेटन है उसकी हम अलग अलग मेथड्स है। तो जैसे हाफमान एग्जस्टिव मिथाइलेशन मेथड 1883 में दी गई थी, तो ये रिंग ओपनिंग मेथड्स है। दिस मेथड इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द कार्बन स्केलेटन। तो जैसे ये पिरिडीन है, पिरिडीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल तो पिरिडीन फॉर्म होती है। और जो मेथिल आयोडाइड है इसका यहाँ पर एडिशन होगा किस पर, नाइट्रोजन पर, और AgOH की नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH के प्रेजेंस में तो हमारे पास ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बीटा H है तो बीटा H का रिमूशन होगा -H2O डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिंग ओपनिंग हो गई। जो नाइट्रोजन है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। और आगे देखिए इसमें इस रिएक्शन में सेम फिर वही मेथिल आयोडाइड और AgOH वही सेम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे मेथिल तो क्वार्टरी अमोनियम साल्ट बन गया और यहाँ से बीटा H वहाँ से वापस यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें ये डाइन में कन्वर्ट हो जाता है और डाइन का फिर आइसोमराइजेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से भी ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिंग ओपनिंग मेथड है इसकी जो एल्केलॉइड्स है। जैसे ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, जैसे ल्यूडोनोसिन है, यहाँ पर 2 बीटा पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कौन सा वाला बीटा निकलेगा इसमें कि रिंग ओपनिंग इस साइड से होगी या यहाँ से होगी इस साइड से। तो दोनों में हम देख सकते हैं। तो दोनों वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है। वाई, बिकॉज यहाँ हियर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, और इस वाली केस में कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन नहीं होगा इसमें,
क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ भी, इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो ये वाला यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन है उसका रिमूवल होता है और रिंग की ओपनिंग यहाँ से होती है। When the base does not contain a beta hydrogen atom, the exhaustive methylation method fails. इसके अलावा जैसे एमडे डिग्रेडेशन मेथड है वो भी यूज ले सकते हैं, जैसे बुओ-ब्लांक रिडक्शन करवाया यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये एडिशन हो जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फिर आगे मिथिल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो वो यहाँ पर ये साल्ट का फॉर्मेशन होगा और सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार, और ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी यहाँ से रिंग का ओपनिंग हो जाती है। तो ये रिंग ओपनिंग मेथड्स है जो इसमें एल्केलॉइड में कौन सा कार्बन स्केलेटन है उसको हम देख सकते हैं। इसी के अलावा जैसे नंबर ऑफ केसेस रिंग ओपनिंग यहाँ से भी हो सकती है। अगर HI की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी रिंग ओपनिंग हो सकती है। ऐसे ही क्या है कि जैसे एल्केलॉइड में अनसेचुरेशन है या नहीं है प्रेजेंसी, उसको हम देख सकते हैं ब्रोमीन से रिएक्शन करा के, या HX का एडिशन करवाते हैं या हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं। इसके द्वारा इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का पता चल जाता है। इसके अलावा जैसे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये एल्केलॉइड की स्ट्रक्चर हेल्प इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पेरोक्साइड है, ओजोन है, आयोडीन, एथेनॉल, एल्कलाइन, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। ऐसे मॉडरेट ऑक्सीडेशन एसिड और बेसिक केमोनोफोर, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और विग्रस में एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में जैसे केमोनोफोर है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, ये रिएजेंट्स यूज लिए जाते हैं। तो इसके द्वारा भी आसानी से हम इसकी स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही एल्केलॉइड है उसको सॉलिड KOH के साथ अगर इसको गर्म करते हैं तो फ्यूजन होता है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। और सेम यही रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो सेम यही रिएक्शन होती है जो पहले वाली जो सॉलिड KOH के साथ। तो ये भी इसमें किस टाइप का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको हम पता लगा सकते हैं। तो जो एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड की जो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये इन रिएक्शन से पता लग जाता है। इसके अलावा जो इसकी स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन करें तो यहाँ से हम देखो एक्सरे एनालिसिस काम ले सकते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं, IR UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम इसका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन इजीली कर सकते हैं। तो आज मैंने आपसे इसके स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के बारे में चर्चा की है, किसकी, एल्केलॉइड। और ये MSc फाइनल में जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी यूनिट 2 का टॉपिक है। धन्यवाद।